Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. We were discussing polynomial rings. In polynomial rings के discussion में we are now having an important concept that is principal ideal domain. ये ऐसे इंटीग्रल डोमेन होते हैं जिनकी हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है. नाउ वी नो व्हेन वी कैन कॉल एन आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल. Whenever an ideal is generated by a single element, then we call that ideal is principal ideal. तो ऐसे इंटीग्रल डोमेन जिसकी हर एक आइडियल किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो, उन सभी आइडियल्स को हम प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके से उस इंटीग्रल डोमेन की हर एक आइडियल एक प्रिंसिपल आइडियल है, और इस सेंस में वी कैन कॉल दैट इंटीग्रल डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. शॉर्ट में हम इसे PID बोलेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ PID. सो वी आर हैविंग द डेफिनेशन of, and this definition will define the principal ideal domain. Okay, we will call now onwards PID. Okay, so a principal ideal domain is an integral domain R in which every ideal has the form that the ideal A, which is generated by A, and this is nothing but the R of A, where this R is coming from the integral domain R for some A in R, that is every ideal is a principal ideal of R. Okay, then we call this R, which is an integral domain, as a principal ideal domain. Okay, now इस प्रिंसिपल आइडियल रिलेटेड से हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, और उन स्टेटमेंट के कंक्लूजन से वी विल सी कि अगेन हाउ Rx over x square minus 1, the ideal generated by x square plus 1, is isomorphic to C using the first isomorphism theorem. Okay, so let us start the theorem. First theorem is theorem 16.4, and it is about that whenever f is a field, then the polynomial ring having the entries from this field f is a PID. ओके, तो जब कभी भी हमारे पास f कोई फील्ड है, तो इससे लेकर हम जो पोलिनोमियल रिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमेशा एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा. ओके, सो लेट f be a field, then the polynomial ring f of x is a PID, principal ideal domain. Now the proof is quite simple. इसका कंस्ट्रक्शन ही हमें ऐसे करना है कि अगर f फील्ड है तो इसका हर एक आइडियल एक प्रिंसिपल आइडियल है. अब प्रिंसिपल आइडियल है, ये हम कैसे शो करेंगे उसके बारे में हमने बात करनी है. प्रिंसिपल आइडियल ऐसे आइडियल है जो किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है, बट इस प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द आइडियल में हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलने वाला है, और जिसकी हेल्प से हम हर एक तरीके के स्ट्रक्चर में हमेशा, ये पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर में हमेशा एक प्रिंसिपल आइडियल का जनरेशन कर सकते हैं. ओके, सो लुक एट द कंसेप्ट कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल आइडियल को जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, सो since we know that f is a field, then f is an integral domain
and hence f is an integral domain, then f of x is an integral domain. हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि whenever d is integral domain then d of x is also an integral domain. Okay, so we are just writing that statement only. अब जब f of x हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, now we can talk about the PID. ओके, अब हम कोई भी इसका एक आइडियल लेंगे और शो करेंगे कि ये एक प्रिंसिपल आइडियल है. ओके, नाउ लेट I be an ideal of f of x. Okay, then we shall show that I is a principal ideal. That is this I is generated by a single element. ठीक है, so we have taken an arbitrary ideal of the f of x and now we are going to prove that this I is principal ideal. तो हमें ये इससे ये मिलेगा कि जब भी आप कोई आइडियल चूज करेंगे वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल ही है, और जब हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो उस केस में हमारा स्ट्रक्चर एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को कंस्ट्रक्ट करेगा. ओके, नाउ केस 1, अगर this ideal is the zero ideal, okay, this is the zero ideal, then this I can be written as the ideal generated by 0 and we are done. But if this I is not the zero ideal, then we can always suppose an element which is non-zero. Okay, then there must be non-zero element in I. ओके, अब I में जो एलिमेंट है वो सभी पॉलिनोमियल्स है. पॉलिनोमियल्स को हम हमेशा डिग्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका मतलब ये जितने भी पॉलिनोमियल है I में, इनमें हम ऐसा देख सकते हैं कि सबसे कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल कौन सा है. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे आप की स्टेप बोल सकते हैं. जब भी हमें पॉलिनोमियल रिंग्स में आइडियल हो और उसे हम मिनिमल डिग्री वाले पॉलिनोमियल से जनरेटेड बताएं तो वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल होता है, और यही एक मेथड भी है टू जनरेट द प्रिंसिपल आइडियल्स. ओके, नाउ लेट मी collect an element which is having the minimal degree. Okay, so among all the elements of I, let z of x be the one of minimum डिग्री. ओके, हो सकता है 1 डिग्री के 4 एलिमेंट हो, दोनों चारों में से हमने एक चूज कर लिया. हो सकता है 2 डिग्री वाले मिनिमम हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो उन सभी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल में से हमने कोई एक पॉलिनोमियल चूज कर लिया. ओके, नाउ we prove that this ideal I is generated by this gx. Okay, this is what we wanted to prove. तो यहाँ पर आपने क्या मेथड सीखा है कि जब भी हमारे पास कोई आइडियल है, इसमें जितने भी पॉलिनोमियल्स है उनमें सबसे कम डिग्री वाले आप पॉलिनोमियल का कलेक्शन लो और उनमें से कोई भी एक पॉलिनोमियल आप कंस्ट्रक्ट, कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं. उस पॉलिनोमियल से जनरेटेड ही वो आइडियल होंगी, ऐसा हम यहाँ पर कह रहे हैं. ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली दिस आई इज अ सेट, दिस जी एक्स इज अ सेट. तो इन दोनों सेट को हमने इक्वल बताना है और हमें पता ही है कि हम कैसे ये शो कर सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू बी. कैसे शो करेंगे? वी विल शो दैट
A इज अ सबसेट ऑफ B, और फिर हम शो करेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A, और इन दोनों से व्हाट वी विल हैव दैट A इज इक्वल टू B, राइट। तो सबसे पहले वी विल शो कि A this I is a subset of G of X, ठीक है। So let us start. So first we will show that this ideal generated by G of X is contained in I. Okay, तो हम ऐसा शो कर देंगे कि Gx के जितने भी मल्टीपल हैं वो I में ही बिलोंग कर रहे हैं। ओके, क्योंकि Gx जो आइडियल है उसके अंदर G के मल्टीपल ही हैं, है ना। So since Z of X is an element of I, therefore for all R belongs to R, we can say R time G of X is in I, right? This इस तरीके के हमेशा एलिमेंट I में ही रहेंगे since I is an ideal, okay? And this implies that R dot Gx इस तरीके के एलिमेंट कहाँ पर होंगे? Gx में. So this implies that this is Z of X contained in I, right? देखिए Gx में किस तरीके के एलिमेंट है? This is Gx containing the element of the form that is R time Gx, where R is coming from the integral domain or the precisely the ring R. ओके तो इस तरीके के जितने भी एलिमेंट है वो Gx में, और हम कह रहे हैं कि इस तरीके के जितने भी एलिमेंट है वो I में जाएंगे क्योंकि Gx ऑलरेडी हमने सपोज किया दिस इज इनसाइड द आइडियल I. ओके सो दिस इज वेरी इजी टू प्रूव. नाउ द सेकंड वन जहां पर हम शो करेंगे दैट I is a subset of the ideal generated by the polynomial x. Okay, अब इसके लिए we will take an element from I और शो करेंगे कि वो gx ideal generated by gx का मेंबर है. So let f of x is a member of I. तो हम शो करेंगे कि ये fx इस आइडियल का भी एक मेंबर है, ठीक है। अब क्योंकि fx I में है और ये जो gx था वो I में मिनिमल डिग्री का पोलिनोमियल था, अगर ये मिनिमल डिग्री का था और fx हम I में से चूज कर रहे हैं, इसका मतलब fx की जो डिग्री है एटलीस्ट gx होगी। ओके, एटलीस्ट द डिग्री ऑफ gx होगा। जितने भी पोलिनोमियल होंगे उन सभी की डिग्री gx की डिग्री से या तो बराबर होगी या फिर इससे ज्यादा होगी, इससे कम डिग्री का होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने gx को चूज ही इस तरीके से किया है कि उसकी डिग्री मिनिमल है, ठीक है। देन by division algorithm we can write f of x is equals to some q of x time g of x plus r of x, where this r of x is remainder and q of x is the quotient. Okay, where this r of x either equal to 0 or the degree of r of x is strictly less than degree of gx. Now again, क्योंकि dx gx तो ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी मिनिमल डिग्री है I में, इसका मतलब ये जो rx है उस ऐसा कोई हमें पोलिनोमियल इस I में नहीं मिलेगा सच दैट इसकी डिग्री लेस देन gx हो जाए, ठीक है। सिंस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, सिंस दिस rx दैट इज इक्वल्स टू f of x माइनस qx टाइम g of x, ऐसा हमने लिखा हुआ है। सिंस दिस fx this is an element of I, this is an element of I, क्योंकि gx ऑलरेडी I का एक मेंबर है whose डिग्री is minimal, और जैसे ही हम पोलिनोमियल I के किसी भी मेंबर को किसी भी रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट एलिमेंट भी I का ही बनेगा। तो ये भी I का एलिमेंट है, ये भी I का एलिमेंट है, तो इनका डिफरेंस भी I का एलिमेंट होगा। इसका मतलब दिस R of x इज अ मेंबर ऑफ I. ओके, और हम ये कह रहे हैं कि since R this is a member of I, therefore the degree of R of x cannot be less than the degree of gx. क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि gx को हमने ऐसा पोलिनोमियल चूज किया है जिसकी डिग्री मिनिमल है, तो इससे मिनिमम, इससे कम डिग्री का पोलिनोमियल तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती, राइट। तो इसका क्या सेंस हुआ, सो our fx has to be so we must have that rx is equals to 0, क्योंकि हम कह रहे हैं कोई भी रिमाइंडर या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, हम कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब r of x का 0 ही होना पड़ेगा। सो r of x is equal to 0, which implies that f of x is the qx time gx, और ये क्या है, gx का एक मल्टीपल ही तो है, एंड दिस काइंड ऑफ एलिमेंट आर एलिमेंट in the ideal generated by g of x. So thus f of x belongs to I is implying that f of x is an element of ideal generated by gx. So this will imply that I is a subset of the ideal generated by x. Okay, so hence from 1 and 2 we can say that this I is equal to the ideal generated by x. Okay, and thus I is a principal ideal of f of x, right, and hence we can conclude that every ideal of f of x is principal ideal, which show that f of x is principal ideal domain. Okay,